نہیں بلکہ ساری کائنات میں جتنے مفسرین ہوئے ان مفسرین کا انہیں سردار کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ روایت کرتے ہیں اور فقہ کے اندر جن کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی روایت کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کے لیے فرمایا من ابغضہما ابغضنی، جس نے میرے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے میرے حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جس نے میرے حسین کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی۔ تو برادران اسلام یہ حدیث شریف تینوں سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ تلوار چل رہا تھا تو کیا رسول خدا خوش ہو رہے تھے یا ناراض ہو رہے تھے؟ رسول خدا اس پہ لعنت بھیج رہے تھے دعا کر رہے تھے؟ تو برادران اسلام یہ قاتلان حسین امام حسین کو قتل کر رہے تھے، لیکن حضرت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک کی محبت، امام پاک کی محبت رسول پاک کی محبت ہے اور امام پاک کو تکلیف دینا رسول پاک کو تکلیف دینا ہے۔ پھر سنیے مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین، کہ رسول پاک نے حضرت امام حسن و امام حسین کے لیے فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن و حسین کو تکلیف کیا، پہنچائی یا ناراض کیا یا ان سے بغض و عداوت و دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ رسول فرما رہے ہیں من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھا، ابغضنی اس نے محمد سے دشمنی رکھا، اور جس نے محمد سے دشمنی رکھا فرماتے ہیں من ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، اور جو محمد سے دشمنی رکھا تو یہاں سبجیکٹ بدل گیا، اس سے اللہ دشمن دشمنی رکھا، اس کو اللہ اپنا دشمن سمجھا، ابغضہ اللہ، اللہ اس کو بغضا تو دشمنی رکھا، وعقرہ النار، اور اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا۔ برادران اسلام پھر سنیے مجموع الفوائد کی حدیث ہے، نبی جلد میں ہے 174 نمبر صفحہ ہے، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہما ابغضتہ، پہلے فرمایا تھا کہ من ابغضہما ابغضنی، جس نے حسن و حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اس یہاں کہہ رہے ہیں کہ من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، ابغضتہ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ رسول خدا کی زبان رسالت گواہی دیتی ہے جو حسن و حسین سے دشمنی رکھتا ہے ابغضتہ میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور جس سے محمد دشمنی رکھتا ہے اس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے حق لہ عذاب جہنم ولہ عذاب المقیم، اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والے جہنم میں رہے گا۔ اس سے یہ کیا ثابت ہوا کہ ایذاء حسین ایذاء محمد ہے، تکلیف حسین تکلیف محمد ہے، امام پاک کو تکلیف دینا حسین کو تکلیف دینا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شہادت حسین شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو برادران اسلام اگر رسول امام پاک سے بغض و عداوت رکھنا رسول پاک سے بغض و عداوت ہے اور رسول سے بغض و عداوت رکھنا اللہ سے بغض و عداوت ہے، تو اب اس کو الٹا دیکھتے ہیں کہ رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا کیسا ہے۔ تو آئیے
लीजिए, अबू हुरैरा की हदीस शरीफ है, मुझे तबरानी ने, इमाम तबरानी रिवायत करते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन को मोहब्बत किया, मेरे आका रसूल ने फरमाया उसने मुझको मोहब्बत किया। जिसके दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत है, उसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। फिर फरमाया मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी, जिसने मुझको मोहब्बत किया, उसने जिसने हसन हुसैन को मोहब्बत किया, उसने मुझको मोहब्बत किया। फिर वही हज़रत सलमान फारसी फिर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन को मोहब्बत किया, रसूल पाक फरमाते हैं उसने मुझको मोहब्बत किया। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, और जो मुझको मोहब्बत किया यानी रसूल को मोहब्बत किया, अल्लाह उसको मोहब्बत करेगा और उसका जज़ा क्या होगा, अदखलहुल जन्नता, उसको लेकर अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। पहले फरमाया मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने हुसैन और हसन को मोहब्बत किया, उसने मोहम्मद मुस्तफा को मोहब्बत किया। फिर दूसरी हदीस में हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं मन अहब्बहुमा अहबब्तहु, उलट गया है फाइल, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ उलट गया है कि मन अहब्बहुमा, जिसने हसन हुसैन को मोहब्बत किया, रसूल फरमाते हैं मैंने उसको मोहब्बत किया। जिसने हसन हुसैन को मोहब्बत किया, मेरे आका रसूल फरमाते हैं कि मैंने उसको मोहब्बत किया। और जिसको मन अहब्बतहु, और जिसको मैंने मोहब्बत किया, सुनो अहब्बहुल्लाह, उसको खुद अल्लाह मोहब्बत करता है। और जिसको अल्लाह मोहब्बत करता है, उसका ठिकाना क्या है, अदखलहुल जन्नतन नईम, नेमत वाली जन्नतों में उसको काबिल दाखिल कर दिया जाएगा, तो जन्नत की नेमतों से हर वक्त सरफराज होता रहेगा। बिरादरान इस्लाम, आइए जरा खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वल खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम पूछेंगे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बतला दीजिए कि यह पाक कौन है। ये दो पैसे के मौलवियों से मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, मैं जो सिद्दीक अकबर है, जिनके लिए कुरान ने कहा है कि सानी इस्लामी हुआ फिल ग़ायब, जिनका वस्फ है वो सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सवाल करना चाहता हूँ कि सिद्दीक अकबर, आप मुझे बता दीजिए, मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि ये हसन हुसैन कौन है, इनकी मोहब्बत क्या है और उनसे बुग़्ज़ अदावत रखना क्या है। तो बिरादरान इस्लाम, किताब का नाम भी आप सुन लीजिए, किताब की नाम किताब में है ज़खाइरुल उक़बा फी मनाक़िब ज़वील क़ुरबा, ज़खाइरुल उक़बा फी मनाक़िब ज़वील क़ुरबा, मुहित अत-तबरी की किताब है, 154 नंबर हदीस है। अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया काला रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीम खीमतन व हुवा मुत्तक़ियुन अला क़ासिन अरबियतिन। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, कोई आम खलीफा या आम सहाबी नहीं फरमा रहा कि मैंने अपने आंखों से देखा, रायत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतन, मैंने एक खीमा, एक ताबू में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा किसी जंग के दौरान या किसी मैदान में, वह हुआ मुत्तक़ियुन अला क़ासिन अरबियतिन, वो तीरों कुमान जो अरबी तीरों कुमान था उस पे टेक लगाया हमारे आका बैठे हुए थे। वो फिल कीमत अली व फातिमा वल हसना वल हुसैना, और उस कीमे में अली, फातिमा, हसन हुसैन भी बैठे हुए थे। तो मेरे आका रसूल पाक ने फरमाया या माशरल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमान के गिरोह, आवाज़ बुलंद फरमाया या माशरल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमान के गिरोह, सुनो अना सिल्मुन लिमन सालम अहलल कीमा,
मैं उससे सुलह करूंगा जो इस ईमान वाले यानी अली व फातिमा व हसन हुसैन से सुलह करेगा। वाना हरबुन लिमन हारबतहुम, और मैं उससे लड़ाई करूंगा जो ये ईमान वाले यानी हसन हुसैन से लड़ाई करेगा। वाना वलियुन लिमन वालाहु, और जो ये हसीमा वाले यानी हसन हुसैन को अपना वली, अपना प्यारा, अपना दोस्त रखेगा, उसको मैं अपना दोस्त रखूंगा। फिर फरमाया रसूल खुदा ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने के रसूल खुदा ने फरमाया कि ला युहिब्बुहुम इल्ला सईदुन जिद्दतीबुल वालदी। रसूल पाक ने फरमाया कि ये हसन हुसैन अली व फातिमा से कोई ऐसा मोहब्बत नहीं कर सकता, वही मोहब्बत कर सकता है जो किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, जिसके तकदीर में मुकद्दर में अच्छाई लिखी हुई होगी, जिसका तकदीर चमकता होगा, वही हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा। और तीबुल विलादा, और जिसकी विलादत सही होगी, जो सही खानदान में नस्ल का होगा, वही हसन हुसैन फातिमा और अली से मोहब्बत करेगा। वला युब्ग़िदुहुम इल्ला शक़िय्युन जिद्दतीबुल विलादा। फिर फरमाया दुश्मनी कौन रखेगा ये भी सुनो, जो बदनसीब होगा, जिस पर अल्लाह की लानत होगी, इसके लिए कुरान ने फरमाया मलऊनीन व मलऊन लोग मेरे हसन हुसैन से मुझसे नफरत और बग़ज़ और अदावत रखेंगे, अली व फातिमा से बग़ज़ और अदावत रखेंगे, और उनकी पैदाइश सही नहीं हो गई, बेशक उनकी औलाद वो अपने माँ बाप की सही जायज़ औलाद नहीं होंगे, वो हसन हुसैन अली व फातिमा से बग़ज़ और अदावत रखेंगे। और ये बात आप गौर कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना सिल्मुन लिमन सालमा अहलल क़ीमा, मैं अली व फातिमा से सुलह करूंगा जो अली, मैं उससे सुलह करूंगा जो अली व फातिमा से सुलह करेगा। तो मैदान करबला में जो लोग हुसैन के खिलाफ कर रहे थे, तो इस हदीस की रूह से क्या रसूल खुदा उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे? रसूल ने तो फरमाया ना हरबुन लिमन सालमा अहलल क़ीमा, जो अहले क़ीमा के साथ दुश्मनी करेगा उससे मैं लड़ाई करूंगा। तो अहले मैदान करबला में इमाम हुसैन से जो यजीदी लश्कर और यजीद वाले अपने गारत गरी कर रहे थे और उनका कत्ल कर रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे, तो मेरा ये जस्तजू, मेरी ये तहकीक करती है कि खुदा के रसूल उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम, और ये भी सुन लीजिए कि रसूल ने फरमाया था कि वो लोग दुश्मनी रखेगा और वो लोग रसूल के खिलाफ करेगा जो वलदुल हरम होगा, जो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद होगी। ये बात आपको मालूम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इब्न ज़ियाद का नाम आपने सुना है, आप जान के रखिए, मैं पहली तहकीक के साथ बोल रहा हूँ। तारीख अरबी असल इब्न ज़ियाद की किताब अरबी मिस्री किताब है, उसमें भी है और बहुत सारी किताबों में है कि इब्न ज़ियाद जो था वो हरामी था, उसका माँ बाप का ठिकाना नहीं था, वो वलदुल हरम था, वो उसके माँ बाप वो नाजायज औलाद, बेशक इमाम हुसैन का कातिल बना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हदीस की रूह की वजह से। सुभान अल्लाह। वो अहले बैत पाक है, अगर उनकी शान बयान करना शुरू करो, देखिए हमारे जो उलमाए किराम जो आप पढ़ रहे हैं मदरसे में, मिशकात शरीफ की चनारात उल्टाते हैं और समझते हैं कि हदीस यही मिशकात शरीफ है, लेकिन ये भी नहीं जानते कि मिशकात शरीफ में 14 हदीसों का मजमूआ है। मिशकात शरीफ में 14 हदीस की किताबों से मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ को जमा किया गया है, लेकिन मैं ये चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि वो 14 में से 10 का नाम मुझे बता पाएंगे। तो ब्रादरान इस्लाम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ तक तो बात पहुँच गई कि रसूल की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है और हुसैन की अज़ियत रसूल की अज़ियत है। यहाँ तक हम पहुँच गए, कुरान और हदीस की रूह से हम यहाँ पहुँच गए। अब मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है, रसूल की हुसैन की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है और हुसैन की अज़ियत रसूल की अज़ियत है, लेकिन जो लोग हुसैन को मोहब्बत करते हैं उनका क्या फायदा? उनका क्या फायदा? उनको क्या फायदा होगा? अली का घम भरने से उनका क्या फायदा होगा? फातिमा की गुलामी करने से उनको क्या फायदा होगा? हसन की गुलामी करने से उनका क्या फायदा होगा? हुसैन की गुलामी करने से उनका क्या फायदा होगा? अली अफजल का नाम लेने से उनका क्या फायदा होगा? कासिम नजवा का नाम लेने से उनका क्या फायदा होगा? अब्बास आलमबरदार का जिक्र करने से उनका क्या फायदा होगा? हजरत खुद का जिक्र करने से
ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ برادران اسلام، تاریخ کی کتابوں کو اگر میں بیان کروں تو میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ساری رات ختم کر دوں گا۔ حدیث کے مختصر حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سیاستہ کی حدیث میں آپ کے سامنے اب لانے جا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کو علماء کرام نے احادیث پہ تیسرا درجہ دیا ہے بخاری اور مسلم کے بعد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک نے، صحابہ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ رسول پاک نے حسن و حسین سے فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین و آباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، من احبنی و احب ہذین و آباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے حسن حسین کو سامنے بیٹھایا اور بیٹھا کر فرمائے کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی محمد مصطفیٰ سے جس نے محبت کی، وہ احب ہذین، اور جس نے حسن حسین سے محبت کی، وہ احب ہذین و آباہما و امہما، جس نے حسن حسین کے بابا اور ماں سے محبت کی، یعنی علی و فاطمہ سے محبت کی، یعنی محبان پنجتن کا کیا ہوگا؟ تو سنیے، کانا فی درجتی یوم القیامت معی، رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں میرے ساتھ، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ محبان اہل بیت میرے ساتھ میرے درجے میں میرے پاس بیٹھیں گے، جو مولا علی فاطمہ اور حسین کو محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے، اور نہ جانے کتنے احادیث شریفہ کی کتابوں کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی ہی سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ انا و فاطمہ و علی، انا و فاطمہ والحسن والحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ۔ حضور مولائے کائنات فرماتے ہیں، اور سے سنیے گا، انا یعنی میں، یعنی علی، انا وہ فاطمہ اور فاطمہ والحسن اور حسن اور رسول پاک تو ہے ہی ہے، والحسین اور حسین مجتمعون، ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے رہیں گے۔ کب مجتمعون، کب بیٹھے رہیں گے؟ کس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ ومن احبنا، اور ایک بیٹھے رہیں گے، اور ان کے ساتھ کون رہیں گے؟ اور ان کے ساتھ وہ رہیں گے جو ہم سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک جو ہوں گے وہ سب بیٹھے رہیں گے۔ کہاں بیٹھے رہیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کی ہولناکیہ کیسی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مگر میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول پاک نے فرمایا انا علی و فاطمہ والحسن والحسین، میں علی، فاطمہ، حسن، حسین مجتمعون، ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے رہیں گے۔ اکٹھے بیٹھے رہ کر کیا اور کون رہے گا؟ ومن احبنا، اور جو لوگ ہم سے محبت کریں گے، یعنی جن کے
दिलों में अली की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में फातिमा की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में हसन की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत होगी। कहाँ बैठे रहेंगे? यौम क़यामत के दिन बैठे रहेंगे। बैठ कर क्या करेंगे? मुज्तमिऊना, अरे वो तो हौलनाक दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा। कोई तो मीज़ान पे होगा, कोई तो फुलसिरात पे होगा, किसी का हिसाब व किताब किया जाएगा। न जाने क्या क्या मंजर आलम में होगा। ये बात पंजतन यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? और अपने चाहने वालों को साथ लिए क्या करेंगे? आइए हम रसूल पाक से पूछे कि या रसूल अल्लाह, आप खुद ही बताना दे कि वो तो हिसाब व किताब का दिन होगा। उस वक्त लोग अपने गुनाहों की वजह से थक थक कांपते होंगे। परवरदिगार आलम फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज दुनिया किसके लिए है? आज मुल्क किसके लिए है? लिमनिल मुल्कुल यौम। लेकिन ये पाक पंजतन क्या कर रहे होंगे? तो मेरे आका रसूल पाक फरमाते हैं, नाकुलू व नशरबू, हम लोग खा रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बातें नहीं है, ये हदीस शरीफ के अल्फाज है। इतनी सारी हदीस का नाम मैंने लिया। अगर किसी को जरा भी शायद आया या गुमान रहे कि जमाल शाह कादरी ने ये गलत हदीस बयान किया है, तो मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि वहाँ आया आकर मेरे पास देख ले। फरमाया रसूल पाक ने, आप लोग क्या कर रहे हैं? रसूल से हमने पूछा तो रसूल ने फरमाया, अली व फातिमा हसन हुसैन अपने मुहिब्बीन को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। सुभान अल्लाह। कब तक खा रहे होंगे, पी रहे होंगे? दूसरों का हश्र व नशर होगा, हिसाब व किताब होगा। हत्ता यफ्रगू मिनल हश्र, यहाँ तक के हश्र, हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद, यहाँ तक के बंदों के दरमियान तफर्रुका पैदा कर दिया जाएगा। हर इंसान का हिसाब व किताब के बाद जिसकी किस्मत में जो लिखी हुई है उसको उसके यहाँ डाल दिया जाएगा। जो जन्नती होगा जन्नत चला जाएगा, जो जहन्नमी होगा जहन्नम चला जाएगा। यानी कि लेकिन मेरे पंजतन पाक मौलाए कायनात खातून जन्नत और हसन हुसैन एक साथ इकट्ठे रसूल पाक के दस्तरखान में बैठे होंगे और रसूल पाक खुद भी तनावुल फरमाएंगे। जन्नती मेवे ऊपर से उतरेंगे, मन मुसलमान नाज़िल होता होगा, हौज़ कौसर की नहरें जारी होती होंगे, उनसे सैराब होते होंगे। नाकुलू व नशरबू, खा पी रहे होंगे। अरे मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ कि कयामत तो औरों के लिए होगी, गुनहगारों के लिए कयामत होगी। उम्मत मोहम्मदी से जो खारिज होंगे उनके लिए कयामत होगी। जो पाक पंजतन पाक से दूर होंगे उनके लिए कयामत होगी। जो हसनैन से मोहब्बत नहीं करते हैं उनके लिए कयामत होगी। लेकिन जो महबान आले बात है, जो महबान पंजतन पाक है, उनके लिए कयामत नहीं होगी, बल्कि उनके लिए पिकनिक होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फायदा? अली का दम भरकर क्या फायदा? हुसैन का दम भरकर क्या फायदा? अरे क्यों न दम भरे? जन्नत के मालिक कौन है? जन्नत के मालिक तो हुसैन है। अरे यजीद की गुलामी करके तुमको क्या मिलेगा? वो का तो न कोई जन्नत है न कोई ठिकाना है, कोई जहन्नमी उसको कबूल नहीं करेगा। बेशक बेशक। उसकी करेंगे जो आपको नौकरी दे सके, ना आपको पैसा दे सके, ना आपको कोई फायदा दे सके। अरे वो तो किसी चीज का मालिक नहीं, वो आपको क्या देगा? वो आपको लेकर जहन्नम में ही डाल देगा। अरे उसका दम भरिए, उसकी गुलामी कीजिए, उसकी नौकरी कीजिए। जो जन्नत के मालिक है, जिनके लिए जन्नत और ज़मीन को पैदा किया गया है, अगर हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, वो जन्नत के मालिक होंगे, हम जन्नत के गुलाम होंगे, हम जन्नत हुजूर इमाम पाक के कदमों पे गिरेंगे, फिर कहेंगे कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हसन और हुसैन चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जो लोग इमाम पाक को मोहब्बत करेंगे उन सबों को सजा कर दुल्हन की तरह करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो लोग थे जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत पंजतन न था, लेकिन बड़े इबादत गुजार थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी देते थे, न जाने इबादतों का फरमा लिए हुए इस गुमान से जन्नत में आएंगे कि हम अपनी इबादतों के बलबूते पर जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत का बवाब यानी दरवान कहेगा कि जन्नत पूरी हो चुकी है, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। किस गुमान से यहाँ आए तुम जन्नत में? अरे जो जन्नत के मालिक को नहीं माना, जो जन्नत के मालिक का गुलाम नहीं हुआ, जन्नत उसके लिए कैसे हो सकती है? जाओ तुम्हारा
जहन्नम है। बरादरान इस्लाम, आइए एक हदीस पाक याद पड़ गई। अल-मुजमुल औसत में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अबग़ज़ा अहलल बैत हशर मन अबग़ज़ा अहलल बैत हशर अल्लाहु यौमल क़यामत यहूदियन। मेरे आका रसूल ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह उसको यहूदी बनाकर क़यामत के दिन उठाएगा। मुजमुल औसत में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मन अबग़ज़ अहलल बैत हशरल्लाहु यौमल क़यामत यहूदियन, जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी करेगा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन यहूदी करके उठाएगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन सामा व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो और रोजा भी रखता हो, फिर भी वो अहले बैत को मोहब्बत नहीं करने की वजह से उसको यहूदी बनाया जाएगा। तो रसूल ने फरमाया, इंसाना व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, लेकिन उसके दिल में अगर हक़ रसूल नहीं है, हक़ बंदतन नहीं है, हक़ अहले बैत नहीं है, तो वो यहूदी बनके उठेगा। तो बरादरान इस्लाम, एक हदीस शरीफ में ये भी आया है, हमने कहा ना कि रसूल को मौलाए कायनात को मोहब्बत करने से क्या फायदा। हजरत मौलाए कायनात को रसूल ने फरमाया कि अव्वल मन यदखुल जन्नत अंता, ए अली सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। तो मौलाए कायनात अपने गुलामों को कैसे भूल सकते थे? फौरन पूछ लिया रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन क्या होगा? वो मुहिब होना, तो मुहिब होना, मेरे मुहिब्बीन का क्या होगा? मेरे मानने वालों का क्या होगा? जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनका क्या होगा? तो मेरे आका रसूल पाक ने फरमाया कि मिन वराइकुम, वो तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरादरान इस्लाम, वो अहले बैत पाक की शान है, इतनी शान है कि बयान करके खत्म नहीं कर सकता हूँ। पाक परवरदिगार आलम हमें इमाम आली मकाम का गुलाम बनाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए कानून कुदरत है कि जब कभी आदम का नाम आता है तो इब्लीस का नाम आ ही जाता है, जब मूसा का नाम आता है तो फिरौन का नाम आ ही जाता है, जब इब्राहिम का नाम आता है अलैहिस्सलाम का, तो नमरूद का नाम भी आ ही जाता है, जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है तो अबू जहल और अबू लहब का नाम आ ही जाता है। इसी तरह जब मोहम्मद इमाम हुसैन का नाम आता है तो यजीद का नाम भी आ ही जाता है। तो यजीद की बदकारियों का सर्र बराबर आपको कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अखरजा बैहकी वल बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बैहकी और बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूल पाक ने फरमाया है, तअव्वज़ू बिन्नास सित्तीन व इमारत सिद्यान, कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम 60 हिजरी की इब्तिदा और गवार लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। ये रसूल पाक का फरमान दलाइल नबुव्वा बहकी की हदीस की किताब में है कि रसूल ने फरमाया तअव्वज़ू, तुम पनाह मांगो। किससे पनाह मांगो ना? इमारत सिबियान, लौंडों और गारों की हुकूमत से।